Today our topic is regarding assessment, which is a very important part of when it comes to Land Revenue Act. As we have discussed it before, that Land Revenue Act is basically related with the revenue, generation of revenue. But how to assess that, what would be the revenue imposed on landowners, imposed on certain lands, on states. This whole procedure is basically called assessment. तो असेसमेंट कैसे की जाती है और असेसमेंट का जो पूरा एक द होल प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट दैट हैज़ बिन discussed in Land Revenue Act. We will go through this, and one thing that you need to understand, it is a very it's not very difficult to understand this process, as it is not very tricky. It's very easy, and the whole presentation will be very much self-explanatory. So let us start. First of all, we should understand what is assessment itself. It is a process by virtue of which landowners are made liable for the payment of land revenue. I mean, this whole act actually deals with the revenue, that how to collect revenue, how revenue is imposed, how it has to be assessed. So now, right now, we're just studying about the assessment. We have already studied about estates, about the documents of estates. We have discussed about revenue authorities, village officers. But now we are coming into this part of land revenue, where we are going to talk about the actual you can say topics. यानी ये वो टॉपिक्स हैं आप जो हम आगे पढ़ेंगे कि जिन की देखें ना, असेसमेंट, लैंड रेवेन्यू, उसकी असेसमेंट, ये एक बड़ा एक मेजर और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे एक्ट का. तो इसलिए आई वुड नीड यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दी ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स. द प्रोसेस बिगिन विद द कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स. नेट एसेट्स क्या होते हैं? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट इन द सेक्शन ऑफ टर्मिनोलॉजीज. के किसी विलेज की जो या किसी लैंड की, द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड after deduction of ordinary expenses is basically net asset. It comes down to the delivery of statement of demand, which is also called दाल बाख, to the village officer. देखिए, अब ये मुख्तलिफ नेम्स हैं हर चीज़ के, जो जिनको हम कॉमन नेम्स कहते हैं. तो बेसिकली होता क्या है कि देखें, लंबरदार इज़ द वन हु नीड्स टू डिलीवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू लैंड ऑनर्स, क्योंकि लंबरदार इज़ द बेसिक विलेज ऑफिसर ऑफ द लैंड, हु जिसका कनेक्शन होता है उन लैंड ऑनर्स के साथ जो अपनी उस एक मौजे में. तो ये उसका काम है कि वो जो है ये चीज़ें कम्युनिकेट करे. All the land wherever situated or whatever purpose is applied shall be liable to the payment of land revenue, but the following areas will be excluded. So these will be the things which are the kinds of lands and the kind of areas that we are going to discuss right now will be exempted from land revenue. Number one, where special contract with government is made, law or provision of law may also exempt it. यानी वहाँ पे जहाँ पे कोई गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट किया है. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है जी, के फलां लैंड जो है वो एग्जेम्प्टेड है लैंड रेवेन्यू से, तो उसको हम कहेंगे कि भाई ये जो लैंड है ये लैंड जो है ये एग्जेम्प्टेड है, इसलिए स्पेशल जो वो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से रेवेन्यू नहीं निकलेगा. ये कोई भी लैंड हो सकती है जो गवर्नमेंट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट करे जिसके साथ. साइट ऑन विच द बिल्डिंग हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड आइदर फॉर रेजिडेंस और बिजनेस, for permanent dwelling or for business. If any permanent structure is erected there, site will be determined only by revenue officer and not by an individual. So who will determine that if this site is not used for agriculture purpose? It will only be done by revenue officer. So basically, if the land is situated in village site, we have discussed kinds of land. काइंड्स ऑफ लैंड का जो एक क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी अपनी प्रेजेंटेशंस में हमने उसको देखा है.
तो बेसिकली जो अगर आप उस क्वेश्चन को भी दोबारा रिविजिट करें तो यू विल अंडरस्टैंड कि कौन सी लैंड्स हैं जो इसमें शामिल नहीं होती। लैंड विच आर इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट लिमिट्स, कंटोनमेंट लिमिट्स या गवर्नमेंट लिमिट्स आप कह लें, उनमें जो लैंड आती है वो नहीं होगी। वेयर प्रॉपर्टी टैक्स, जहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लगता है वो नहीं होगा। वेस्ट एंड बैरन लैंड, बिकॉज वेस्ट एंड बैरन लैंड इज नॉट यूज बाई फॉर पर्पज ऑफ प्रोड्यूस, क्योंकि देखिए ना हमने बेसिकली बात करनी है कि प्रोड्यूस पे असेसमेंट होती है, क्योंकि बाकी जिस है उस पर रेवेन्यू नहीं आता, उस पर दूसरे किस्म के टैक्सेस होंगे। यहाँ पे हम सिर्फ प्योर रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू की ही असेसमेंट की बात हो रही है ये। या हाँ, असेसमेंट में फिर आपने कुछ और सेसेस एंड रेट्स की बात हम कर सकते हैं, उसमें भी असेसमेंट आती है। इट शैल ऑल्सो बी एग्जेम्प्टेड फॉर ऑनवर्ड 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ कल्टिवेशन आफ्टर नोटिफिकेशन, यानी कि नोटिफिकेशन के 6 साल के अंदर अंदर अगर एक जगह पे कोई कल्टिवेशन हो रही है तो फिर तो ठीक है। सच पीरियड शुड बी कंटिन्यूइंग, एग्जेम्पशन इज नॉट ग्रांटेड इफ फॉर सम टाइम कल्टिवेशन हैड बीन done. So for example, if there is a land and you are cultivating the land for some time and then you halt it, so when you halt it, so for time being maybe land revenue will not be given, but it will not be permanently discontinued. Why? Because you are cultivating it anyways. Land revenue is assessed in cash only. Two systems are provided for assessment of land revenue: fixed assessment and fluctuating assessment. Fixed assessment remains in force for 25 years, that will be payable or either in lump sum or in the form of installment. Revenue officer determines whether fixed or fluctuating assessment is applicable. अब fixed assessment कहाँ पे होती है? Where climate situation remains the same. Where climate situation remains the same, there will be fixed assessment, and where it is not the same, there will be फ्लक्चुएटिंग असेसमेंट, क्योंकि वहाँ पर आता नेचुरल सोर्सेज से जो है वो आपकी असेसमेंट होती है, क्योंकि नेचुरल सोर्स में कभी बारिश हुई, कभी नहीं हुई, कभी पैदावार ज़्यादा हुई है, कभी नहीं हुई है, तो फिर वहाँ पे फ्लक्चुएट आएगा, हर साल का डिफरेंट हो सकता है उधर। लेकिन फिक्स जो होता है वो तो होता है 25 ईयर्स के लिए, मतलब मैक्सिमम वो 25 ईयर्स तक जाता है। लैंड रेवेन्यू इज नॉट असेस्ड अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड ईयर, बिकॉज दिस विल क्रिएट अ वेरी एक काइंड ऑफ के भाई उस साल कपास की अगर कोई फसल है तो उस साल कपास की क्या वैल्यू थी, वो साल ईयर टू ईयर ऐसे वो डिपेंड नहीं करते कि मार्केट में भी ज़्यादा हुई प्राइस अभी कम हुई, कि फिर ये उसका एक सिर्फ एक वो पूरे का पूरा गवर्नमेंट रेट दे देते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट रेट है बस। अब एक्चुअल मार्केट में क्या प्राइस चल रही है इससे उनको गर्ज नहीं होती गवर्नमेंट को, और वो वैसे अक्सर नॉर्मल प्राइस ही होती है, क्योंकि एक्चुअल प्राइस अक्सर ज़्यादा ही होती है। ये जो प्रैक्टिकल जो बात है वो यही है। सेक्शन 56 अगेन, दिस इज द होल थिंग वी आर नाउ स्टडीइंग इज बेसिकली सेक्शन 56. Assessment is made in the form of prescribed rates per units of an area recorded as sown, matured और कल्टिवेटेड। मेच्योर मतलब ये कि जो डिपेंड करता है ना असेसमेंट कैसे होती है। असेसमेंट किसी एरिया में किला चल रहा है एज अ यूनिट, किसी एरिया में कनाल चल रहा है, किसी में मरला चल रही है, जो उस एरिया में यूनिट चल रहा है वो देखा जाएगा कि कितने, अगर वो यूनिट कनाल है, मुरब्बा जो भी है, तो वो देखा जाएगा कि वो कितनी देर में जो वो कितनी जगह पे कल्टीवेशन हुई है, कितनी जगह पे खाद वगैरह डाली गई, किस तरीके से वहाँ पे इरिगेशन हुई है, क्या तरीकाकार वहाँ पे यूज़ हुआ है, तो उस हिसाब से फिर असेसमेंट होती है हर एरिया की। क्योंकि देखिए ना एक विलेज के अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ में हो सकता है मुख्तलिफ तरीके से उनको इरिगेशन दी गई हो, मुख्तलिफ तरीके से वहाँ पे खाद डाली गई हो, मुख्तलिफ बीज बोए गए, भाई हाइब्रिड बीज है, कहीं पे दूसरा कोई देसी बीज है। तो ये जो किसान है उनको खैर ये इन चीज़ों का ज़्यादा उसमें होता है। बहरहाल बीइंग अ लॉयर यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन दी kind how it is how cultivation is done in that land. So exemption इसमें कुछ ये है कि up to 2.5 acre of irrigated land is exempted from the payment of land. 2.5 एकड़ तक की जो लैंड है वो एग्जेम्प्ट है लैंड रेवेन्यू से अगर वो इरीगेटेड है। इरीगेटेड वो लैंड होती है जो कि आर्टिफिशियल चैनल से जिनको हम कर रहे होते हैं, हमने पढ़ा ना इरीगेटेड अनइरीगेटेड लैंड का।
एग्जेम्पशन ऑफ अनइरिगेटेड एरिया गोज टू 5 एकड़, वो इसका डबल है। Irrigated and unirrigated land is both owned by landowner would be exempted provided irrigated land does not exceed by from 2.5 एकड़। अगर किसी के पास दोनों लैंड्स हैं तो अगर उसका इरिगेटेड हिस्सा 2.5 एकड़ से ज़्यादा नहीं है तो वो एग्जेम्प्ट है। तो ये एग्जेम्पशन आपने सिर्फ ये 2.5 एकड़ जो है ना बेसिकली इरिगेटेड लैंड और 5 एकड़ जो है अनइरिगेटेड लैंड, ये एग्जेम्पशन है। ये सारे प्रोविंसेस में सिवाय सिंध के, क्योंकि सिंध में जो है 25 एकड़ पहले केस में और 50 एकड़ और 25 एकड़ फिर थर्ड केस में, यानी कि 25 एकड़ अनइरिगेटेड लैंड, 50 एकड़ इरिगेटेड लैंड और 25 एकड़ अगर एक बंदे के पास दोनों तरह की लैंड हो। बाकी प्रोविंसेस में 2.5 एकड़ है। बेसिस ऑफ असेसमेंट, अब ये सेक्शन 57 है, 58 है, 59 है, 60 है। तो बेसिकली इसमें कहा क्या जा रहा है कि settlement officer calculates the land revenue on the basis of average gross produce of an state or a group of states. Assessment may either be general or special. A general assessment or reassessment of the land revenue of an area shall be taken by the sanction of government, which shall also provide instruction thereto. So याद रख लें, चाहे असेसमेंट जनरल है या स्पेशल है, ये किसने करना है, ये भी सेटलमेंट ऑफिसर ने काम करना है इसके बारे में। सेटलमेंट ऑफिसर जो है वो ग्रॉस प्रोड्यूस को देख के नेट एसेट्स को डिटरमिन करता है। सेटलमेंट ऑफिसर जो है वो उस वक्त तक असेसमेंट नहीं करता जब तक कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस इलाके की गवर्नमेंट पहले से उसको सैंक्शन ना दे। रेवेन्यू ऑफिसर जो उसको कर रहा होता है, नायब चाहे असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 है या ग्रेड 1 है, नॉर्मली ग्रेड 2 होता है ये। तो तहसीलदार जो होता है वो, या जो वो थ्रू कलेक्टर रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बताता है कि भाई मैं जनरल असेसमेंट करने लगा हूँ, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ना वो फिर एक डेट देती है कि भाई इस डेट से असेसमेंट लागू होगी। वो जो डेट है, वो प्रोसीजर है, वो सारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देता है, लेकिन इससे पहले सैंक्शन जो है वो गवर्नमेंट देगी कि भाई तुम इस इलाके की असेसमेंट करो। नेक्स्ट है 61, एवरेज रेट ऑफ असेसमेंट ऑन एनी असेसमेंट सर्कल शेल नॉट एक्सीड द रेट ऑफ असेसमेंट इम्पोज एट द लास्ट प्रीवियस असेसमेंट बाय मोर देन 1/4। तो याद रख लें गाइस के असेसमेंट सर्कल क्या होता है। असेसमेंट सर्कल वो होता है कि जिसमें मुख्तलिफ लैंड्स शामिल होती हैं जो एक ही तरह की होमोजीनियस होती हैं, क्योंकि असेसमेंट सर्कल की हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि बहुत सी लैंड्स कई दफ़ा बिल्कुल एक जैसी हों तो उनका एक सर्कल बन जाता है और रेवेन्यू ऑफिसर एक ही दफ़ा उस पूरे सर्कल में मौजूद लैंड्स की असेसमेंट करता है। तो असेसमेंट जब लैंड्स की असेसमेंट होती है तो वो पिछली दफ़ा के असेसमेंट से 1/4 ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि अगर पिछली दफ़ा एक असेसमेंट में 100 रुपये आया था तो इस दफ़ा 125 रुपये होगा। 125 से ज़्यादा नहीं हो सकता, सिंपल एज दैट। 1/4 से ऊपर आप नहीं जा सकते। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि अगर पिछली दफ़ा फ़र्ज़ किया लैंड रेवेन्यू की जो असेसमेंट थी वो 100 रुपये थी, तो उसका 100 का 1/4 क्या 125 रुपया हुआ ना, तो 125 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा ये। लैंड नॉट प्रीवियसली सेस्ड टू लैंड रेवेन्यू। अच्छा, ये याद रख लें कि अगर कोई भी स्टेट जो है वो असेसमेंट सर्कल में शामिल है, कोई भी स्टेट, तो उस स्टेट का जो अब जब आप असेसमेंट करेंगे तो वो उसकी जो पिछली असेसमेंट थी उसके हाफ से भी ऊपर नहीं हो सकती। 1/4 अगर हाफ से ऊपर जा रहा है तो फिर वो 1/4 उस स्टेट पे काबिल अमल नहीं होगा। यानी कि अगर एक स्टेट असेसमेंट सर्कल में शामिल है, लेट्स से, क्योंकि असेसमेंट सर्कल में तो बहुत सारी लैंड्स स्टेट्स होती हैं, अगर उस सारी असेसमेंट सर्कल को अगर हम देखें तो अगर हम उसका 1/4 करें, लेकिन उस पूरे असेसमेंट सर्कल का 1/4 किसी एक स्टेट के 1/2 से ज़्यादा है ना, तो फिर वो 1/4 उस स्टेट पे काबिल अमल नहीं होगा फिर, क्योंकि उस स्टेट का 1/2 ही 1/2 से आप स्टेट के ऊपर नहीं जा सकते। यानी लास्ट टाइम जो असेसमेंट हुई उसके, अगर लास्ट टाइम असेसमेंट एक लैंड की 100 रुपया है तो 150 से ऊपर नहीं आप जा सकते किसी भी सूरत में। एग्जेम्पशंस, ये जो हमने भी ऊपर बात की ना 1/4 और 1/2 वाली, उसकी कुछ एग्जेम्पशंस हैं कि अगर वो लैंड जिसकी पिछली दफ़ा असेसमेंट हुई ना, तो फिर तो जाहिर बात है फिर कहाँ से 1/4 और कहाँ से 1/2 उसका करेंगे। वेयर कैनल इरीगेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, जहाँ पे असेसमेंट सर्कल में आपने ऑर्डर कर दिया, उस ऑर्डर के बाद अगर वहाँ पे कोई कैनल्स आ गए, क्योंकि वो तो 25 साल तक चलता है ना, तो 25 साल के दौरान अगर वहाँ पे इरीगेशन के पर्पसेस डिफरेंट हो गए, वहाँ पे
अनइरीगेटेड इरीगेटेड लैंड वाला डिफरेंस आ गया है। जो पहले अनइरीगेटेड लैंड थी वो इरीगेटेड हो गई है, क्योंकि तगय्युरात हो गए ना, ज़मीन की हैयत तब्दील हो जाए तो फिर तो ज़ाहिर बात है असेसमेंट वो तो नहीं चलेगी फिर 25 साल तक। फिर तो दोबारा असेसमेंट उसको देखना पड़ेगा उसको, वो हम आगे देखेंगे स्पेशल असेसमेंट में। गवर्नमेंट हैव नोटिफाइड लैंड टू बी इंक्लूडेड इन एन अर्बन असेसमेंट सर्कल। अब बीच में अगर कोई लैंड रेवेन्यू की उससे निकल के किसी अर्बन असेसमेंट सर्कल में चली जाती है तो वहाँ पे तो ज़ाहिर बात है अर्बन एरिया में जो भी लैंड जाएगी वो कॉस्टली हो जाती है, तो वहाँ पे तो फिर उस पर उस तरीके से उस असेसमेंट नहीं होगी। In case of introduction of canal irrigation, average rate of assessment shall not exceed the average rate of assessment of lands of similar kind. Simple. ये सारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इफ़ यू गो थ्रू दिस। अगर आप इसको मतलब ज़रा गौर से अगर हम इसको देखें। ओके, अब समझे कि असेसमेंट हो चुकी है। असेसमेंट होने के बाद अगर लैंड ऑनर्स कहते हैं भाई असेसमेंट में मंजूर नहीं है, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर रेवेन्यू ऑफिसर को एक एप्लीकेशन देंगे भाई हमें ये असेसमेंट फ़लाँ वजह से मंजूर नहीं है, और रेवेन्यू ऑफिसर जो है फिर वो उस पर हाँ या ना में जवाब देगा अपनी रीजंस के साथ। अब अगर किसी तरीके से असेसमेंट में इन्हांसमेंट हुई है या असेसमेंट बंदे को कबूल नहीं है, किसी लैंडर को कबूल नहीं है, और वो इस रेवेन्यू ऑफिसर के से मुतमईन भी नहीं है, तो वो थ्रू कमिश्नर जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी लिखता है, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो थ्रू कमिश्नर ऐसे लैंड ओनर्स को नोटिस करता है कि वो लैंड ओनर्स को ये कहता है कि भाई आप आओ और आप बताओ कि क्यों आपको असेसमेंट ज़रूरी नहीं है। वो चाहे तो उनको बुला सकता है, स्पेशली अगर वो ख़ुद भी चाहे तो कमिश्नर उनको सुन भी सकता है। बेसिकली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थ्रू कमिश्नर जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर को कहता है कि तुमने जो ये इन्हांसमेंट की है ये क्यों की हैं, यानी वो रेवेन्यू ऑफिसर को भी पूछ सकता है कि ये इन्हांसमेंट्स जो की हैं, ये असेसमेंट तुमने कैसे की हैं, ये वो यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर से पूछता है। रेवेन्यू ऑफिसर शैल इंक्वायर इनटू एनी ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय एनी लैंड ओनर एंड सबमिट सच पिटीशन received by him with his report thereon to commissioner or the board of revenue who shall also hear the petition of the petitioner so desires। तो देखे ना, रेवेन्यू ऑफिसर सारी कार्रवाई करके सब सारा मटेरियल करके भी इन्हांसमेंट अगर हुई है, कैसे असेसमेंट हुई है, रॉन्ग हुई है, तो उस असेसमेंट को वो बना के उसकी रिपोर्ट बना के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को या कमिश्नर को देता है। आगे सेक्शन 64 में ये है कि असेसमेंट मेड वंस रिमेन्स इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 25 years and not less than 10 years specified by the Board of Revenue in which canal irrigation has been introduced. The assessment shall remain in force till a new assessment takes effect। जब तक नई असेसमेंट नहीं होती, पुरानी असेसमेंट इनफेक्ट रहती है कि 25 साल से ज़्यादा उससे बाद भी असेसमेंट नहीं होती, तो इसका मतलब कि पुरानी असेसमेंट चलती रहेगी। ये नहीं कि आप वो लैंड रेवेन्यू ना दें उधर। और जहाँ पे कैनल इरीगेशन है वहाँ पे 25 साल मैक्सिमम लिमिट रखी गई है और 10 साल मिनिमम लिमिट रखी गई है। Board of Revenue hears the appeals and satisfies the landowners upon the confirmation of land revenue. Landowners or group of landowners have liability to land revenue more than 50% within 90 days may give notice of refusal to pay land revenue। देखना, अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये सारी अपीलें सुन के सब कुछ करके ये फैसला किया है जी कि लैंड असेसमेंट ठीक है, या जो असेसमेंट उसने की है मतलब यही असेसमेंट होगी, तो उस असेसमेंट के करने के बाद 50% से ज़्यादा जिस लैंड ओनर पे बनता है लैंड रेवेन्यू देना, उसने फिर वो देना होता है। एक्सेप्ट ये कि वो 90 डेज़ के अंदर अंदर ऐसा लैंड ओनर जो कहता है उसको तब भी ये असेसमेंट मंजूर ना हो, तो वो 90 डेज़ के लिए वो 90 डेज़ के अंदर अंदर लिख सकता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, भाई मुझे ये असेसमेंट फिर भी अभी भी यानी कि आफ्टर सारी अपील मुझे अभी भी मंजूर नहीं है। तो उसके बाद जो है फिर वो ये होता है कि फिर जो है ना कलेक्टर जो है वो पोजेसन ले सकता है उस ज़मीन की जिस ज़मीन का मालिक जो है कहता है मैं अभी भी लैंड रेवेन्यू नहीं दे रहा, वो उसकी पोजीशन ऐसे लेगा जैसे कि ये लैंड एरियर बन गए, यानी वो एरियर्स बन गए। एरियर्स क्या होता है? एरियर्स वो होता है कि जब आपके ऊपर था कि आपने रेवेन्यू देना और आपने रेवेन्यू नहीं दिया, तो वो एरियर बन जाता है, क्योंकि एरियर ऑफ लैंड को हमने पढ़ा हुआ है। तो अप टू 10 ईयर्स जो है कलेक्टर अपने पास रखता है, लेकिन इस दौरान वो मैक्सिमम 70% और मिनिमम 50% के दरमियान आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट बाकी वो जो मालिक है जो लैंड ऑनर है उसको देने का पाबंद होता है।
तो ये एक किस्म की तो प्रेजेंटेशन है पूरी असेसमेंट कैसे होती है। असेसमेंट के आगे जो है वो लैंड ऑनर्स के पास, उनके पास रेमेडीज़ क्या हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का प्रोसीजर क्या है एक असेसमेंट को डिक्री करने का। असेसमेंट होने के बाद जब वो ना करे तो कलेक्टर कैसे उस लैंड को लेता है। तो ये सारा इसमें प्रोसीजर दिया हुआ है जनरल असेसमेंट का। तो इफ़ यू स्टिल हैव सम प्रॉब्लम इन दैट, you can ask me, and I hope that this presentation was very much fruitful for you. So I hope to hear from you soon. Thank you.